नाजरीन का T9 टीवी न्यूज़ में खैर मकदम है। महबूब नगर की नुमाइंदे मुस्लिम तंजीमों की जानिब से मुस्तखिर के इसम फंक्शन हाल में एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाए, जिसमें सभी तंजीमों की जानिब से रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ पर कातिलाना हमले की साजिश को बदबख्ताना करार देते हुए इस साजिश की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन अहमद एडवोकेट सदर रियासती इमारत ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा सदर मुस्लिम लीग ट्रस्ट, मोहम्मद सलीम नवाब सदर ताज दक्कन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, सैयद वहीद पाशा नायब सदर ऑल मेवा नूरुल हसन मोतमदी ईदगाह कमेटी, मोहम्मद समद खान होटल ओनर्स एसोसिएशन, हाफिज इद्रीस सिराजी सेक्रेटरी गौसकारी एकेडमी, मोहम्मद अहमद सना सदर मुस्लिम सेवा महबूब नगर, अब्दुल खदीर सेठ मोटर लाइन एसोसिएशन, सुबहानी पटेल सदर मुस्लिम खबरस्तान तहफ़्फ़ुज़ कमेटी व दिगर ने मुखातिब किया। इनका कहना था कि डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने बिला तखरीब मजहब व मिलत व सियासी वापस्तगी पर किसी की तरक्की व गिला के लिए काम कर रहे हैं और पिछले 70 साल में शहर महबूब नगर की तरक्की का जो काम नहीं हुआ वो काम अपने 7 साला दौर इख्तिदार में इन्होंने वो तरक्की को यकीनी बनाकर दिखाया। श्रीनिवास गौड़ की महबूब नगर की अवाम में बढ़ती मकबूलियत को देखकर इनके सियासी मुखालिफिन ने वज़ीर मौसूफ के कत्ल की साजिश रचाई, लेकिन तेलंगाना पुलिस ने कामयाबी के साथ इस साजिश को बेनकाब करते हुए साजिश रचने वालों के चेहरों को बेनकाब किया। इन कायदीन ने मजीद कहा कि महबूब नगर के मुसलमान डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ के साथ खड़े हैं और उनकी सलामती के लिए दुआगो है। इस मौके पर दिगर कायदीन मोहम्मद अनवर हुसैन, सैयद मोइजुद्दीन चिश्ती, मोहम्मद इकबाल व दिगर मौजूद थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ఒక చాలా పెద్ద ఏదైతే ఇక్కడ కాండ పోయేది ఉండు దాన్ని మనం నివారించగలిగామన్నమాట. అందుకే ఈరోజు మహబూబ్ నగర్లో నివసించే ప్రతి వారు, కేవలం మహబూబ్ నగర్లే కాదు తెలంగాణలో ఉన్న ప్రతి వారు కూడా ఈ సంఘటనను ఖండిస్తున్నారు. దీని వెనుక ఎలాంటి శక్తులు ఉన్నా కూడా, ఏ రాజకీయ పార్టీ నాయకులు ఉన్నా కూడా, ఎంత పెద్ద వ్యక్తులైనా కూడా మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం, పోలీస్ శాఖని కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అలాంటి వారిని బహిర్గతం చేసి వాళ్ళకు కూడా కఠినంగా శిక్షించాలని ఈరోజు మహబూబ్ నగర్ యొక్క ముస్లిం ప్రజా సంఘాల వాళ్ళు అందరూ కలిసి ఈరోజు ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టడం జరిగింది. మహబూబ్ నగర్లో మనం చూస్తే శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు ఎన్నో అభివృద్ధి పథకాలు ఇక్కడ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఇక్కడ 7 మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఎన్నో ఆపదలో ఉన్న వారికి ఆయన ఆదుకోవడం జరుగుతుంది. ఎవరైనా ప్రాణం బాగాలేదు హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయినా కూడా లక్షల్లో కూడా ఆయన ఆర్థిక సాయం అంచడం జరిగింది. డబుల్ బెడ్రూమ్ రూపంలో కానివ్వండి, ఎన్నో విధాలుగా ఆయన అన్ని వర్గాల వారికి, ముస్లిమ్స్కి కానివ్వండి, బీసీలకు, ఎస్సీలకు, ఎస్టీలకు, బీసీలో ఉన్న అన్ని వర్గాలకు ఆయన సమానంగా చూస్తూ ఈరోజు దూసుకుపోతుంటే ఆయనకు చూడలేక, ఆయన యొక్క పబ్లిక్లో ఉన్నటువంటి సింపతిని చూడలేక, ఆదర్శాన్ని చూడలేక కొందరు ఇలాంటి చర్యలకు చేపట్టడాన్ని మహబూబ్ నగర్ యొక్క అన్ని ముస్లిం సంఘాలు దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాయి. దీంట్లో కొందరు ముస్లింల ప్రేమం కూడా ఉన్నా కూడా వారిని కూడా కఠినంగా శిక్షించాలని కూడా మేము ఈ సభాముఖంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఎవరైతే సుపారీ గ్యాంగ్ ఉందో ఆ సుపారీ గ్యాంగ్కి కూడా జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా బయట రాకుండా వారిపైన కూడా కఠిన చర్యలు, స్ట్రాంగ్ వారి మీద కేసెస్ వేసి ప్రభుత్వం వారిని, పోలీసు వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని మేము కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు ఏదైతే అభివృద్ధి పథకాలు చేపట్టడం జరిగిందో వారి పట్ల ఎవరైతే ఈ పగబట్టి ఏదైతే చేయడం జరిగిందో దాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. రాబోయే కాలంలో కూడా ఎవరైనా ఇలాంటి చర్యలకు పూనుకుంటే, ఒకవేళ వాళ్ళు అలా అనుకుంటే తీవ్రమైనటువంటి ప్రతిఘటన ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని, దాంట్లో మేము ఎప్పుడు కూడా శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారి వెంట, ఆయన యొక్క అభివృద్ధి కార్యక్రమాల వెంట ఆయనకు మేము సపోర్ట్గా ఉంటామని కూడా ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తున్నాం. ఏదైతే చేయడం జరిగిందో దాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. రాబోయే కాలంలో కూడా ఎవరైనా ఇలాంటి చర్యలకు పూనుకుంటే, ఒకవేళ వాళ్ళు అలా అనుకుంటే తీవ్రమైనటువంటి ప్రతిఘటన ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని, దాంట్లో మేము ఎప్పుడు కూడా శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారి వెంట, ఆయన యొక్క అభివృద్ధి కార్యక్రమాల వెంట ఆయనకు మేము సపోర్ట్గా ఉంటామని కూడా ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తున్నాం. हमारे हरदिल अजीज़ कायद
हमारे मकामी एमएलए और तेलंगाना हुकूमत के मिनिस्टर डॉक्टर जी श्रीनिवास गौड़ साहब पर जो कत्ल की साजिश रची गई थी, उसको हमारी तेलंगाना पुलिस ने उस साजिश का पर्दाफाश कर सबके सामने लाया। हम तेलंगाना पुलिस को मुबारकबाद देते हैं और ऐसा करने वालों की मजम्मत करते हैं कि इस किस्म की हरकत करके एक महबूब नगर के माहौल को और ख़ासकर तेलंगाना के माहौल को जो ख़राब करने की कोशिश, जो साजिश रची गई, इसकी हम लोग सख्ती के साथ मजम्मत करते हैं। और एक ऐसी शख्सियत जो महबूब नगर के ख़ासकर 2014 के इलेक्शन के बाद जीतने के बाद से, और ख़ासकर उन्होंने जब मिनिस्टर बनने के बाद से दूसरी मर्तबा, उसके बाद जो महबूब नगर की तरक्की में उन्होंने अपना रोल अदा किया है, वो पूरे अवाम के सामने है। इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करके ये कुछ अपोजिशन पार्टियां, कुछ हैसों के दुश्मनी, महबूब नगर से दुश्मनी करने वाले लोग हैसों के, उन पर हैसों के ये कत्ल के साजिश के लिए कोशिश किए, मगर महबूब नगर के अवाम इसकी मजम्मत करती है और ख़ासकर पूरे मुसलमान, क्योंकि महबूब नगर 70 साल में जो चीज़ नहीं हो सकी, वो आज तारीख़ी तरीक़े से 4 साल में जो तरक्की हुई है, उसको गिनते जाएं तो वक्त काफ़ी हो जाएगा। मैं हर एक से और ख़ासकर अवाम से मुतालबा करता हूँ कि हर आदमी इस चीज़ की मजम्मत करना चाहिए। एक ऐसी हरकियाती शख्सियत जो रात दिन अवाम के कामों में, अवाम की खिदमत में मसरूफ़ रहते हैं, और ख़ासकर हमारे श्रीनिवास गौड़ साहब की, खैर डेवलपमेंट की बात तो अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने अवाम के लिए जो महबूब नगर का आदमी अगर कोई हैदराबाद में दवाखाने में है तो इमीडिएटली वो है तो कि दवाखाने से रुजू होकर उसको अच्छे से अच्छा, हैदराबाद में दवाखाने में है तो इमीडिएटली वो है तो कि दवाखाने से रुजू होकर उसको अच्छे से अच्छा इलाज करवाए। और ख़ासकर मैं ये समझता हूँ कि तेलंगाना में आरोग्य श्री में और जितना भी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से जितने अवाम की खिदमत की गई है, बीमारों की, तीमारदारों की, मैं समझता हूँ ये तारीख़ी है, जिसमें श्रीनिवास गौड़ साहब को मैं जहाँ तक समझता हूँ अल्लाह ताला उसका अजर ज़रूर देंगे। और जो साजिश रची गई थी उससे जो बाहर उन्होंने निकले, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे और अवाम की खिदमत करते रहे, ये हमारी दुआ है। और हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं जो उनके ऊपर कत्ल की साजिश की गई। में दिलवाए हैं, शादी मुबारक के काम भी बहुत कर रहे हैं। जब से इन्होंने आए हैं क्या यहाँ पे एक दिन भी करंट 1 मिनट के लिए भी नहीं जा रहा। पहले करंट ऐसा था, मैं करंट डिपार्टमेंट का ही हूँ, मगर करंट के बारे में सोचे तो हमेशा करंट की परेशानी हो जाती थी। जब धुपकाला आ रहा तो परेशान हो जाते थे, पानी नहीं रहता था। जब से ये गवर्नमेंट आई है, ख़ास तौर पे हमारे महबूबनगर के लिए डायनामिक पर्सनालिटी जो श्रीनिवास गौड़ साहब आए हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं। ऐसे आदमी के ऊपर, ऐसी शख्सियत के ऊपर ये खादिलाना हमला, उसकी हम बहुत मजम्मत करते हैं। हम TRS की गवर्नमेंट के साथ और हमारे श्रीनिवास गौड़ के साथ हैं। हमारे को जो है एक मेडिकल का एड ज़रूरत थी तो श्रीनिवास गौड़ साहब के पास मैं नहीं गया, कोई दूसरे आदमी चले गए, फौरी उन्होंने मेडिकल एड सैंक्शन करवाया, वो पैसे भी हमें दिलवाए हैं। शादी मुबारक के काम भी बहुत कर रहे हैं। जब से इन्होंने आए हैं क्या यहाँ पे एक दिन भी करंट 1 मिनट के लिए भी नहीं जा रहा। पहले करंट ऐसा था, मैं करंट डिपार्टमेंट का ही हूँ, मगर मैं मोहम्मद अहमद अली सना मुस्लिम सेवा की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम सेवा की तरफ से इस बात की मजम्मत भरपूर तरीके से करता हूँ कि ये जो भी दुश्मनान रियासत या तरक्की के जो हैं, इनके ख़िलाफ़ भरपूर मजम्मत करता हूँ। और श्रीनिवास गौड़ साहब के जो कत्ल का नाजायज़ मंसूबा बनाए थे, इस मंसूबे को जो है ना हुकूमत की पुलिस जो नाकाम करी, उन्हीं को भी मुबारक देते हुए हम भरपूर मजम्मत करते हैं इस इक़दाम की, और हमेशा श्रीनिवास गौड़ साहब के साथ रहने का आज़म करते हैं। और उनके साथ जो है ना हम सभी मुस्लिम कौम और तंजीमों की तरफ से हमारा जो है ना भरपूर साथ रहेगा। उम्र ख़त्म हो जाएंगी मगर यहाँ पे किसी को एलिमिनेट करने का तुम्हारा नाकाम होंगे, नाकाम साबित होंगे तुम, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत है हर कौम में जो है सो उनके
बावखार तरीके से उनकी नज़रों से देखा जाता है। और ये श्रीनिवास गौड़ साहब को तुम कितनी भी साजिश कर लो, मैं समझता हूँ अल्लाह की हिफाजत उनके साथ रहेंगी, अल्लाह का जो है सो उनका प्रोटेक्शन उनके साथ रहेगा। ऐसी शख्सियत है, उनके लिए जो है सो ऐसा ये करना, यहाँ के मुकाम में कुछ नाम मालूम भी है मगर मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर ये साजिश करने वाले, अरे तुम्हारी गिरबान में जहाँ के देख लो, तुम पब्लिक की क्या खिदमत करे, तुम सिवाय फसाद के, बर्बादी के, मुल्क को पीछे ले जाने का कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। और वहीद शाह है, टीआल मेवा स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। जैसे वहीद शाह, टीआल मेवा स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ तेलंगाना एसीबी को, जिन्होंने इतनी बड़ी साजिश का जो है सो भांडा फोड़ा और महबूब नगर के एमएलए और तेलंगाना स्टेट के मिनिस्टर साहब के ऊपर जो हमला होने वाला था उसको रोका गया, इसके लिए वो काफ़ी मुबारकबाद है। और दूसरी चीज़, हमारे मिनिस्टर साहब डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ साहब, ये इतने एक मिनिस्टर होते हुए भी एक आम आदमी की तरह महबूब नगर में हमेशा नालियों का मसला रहंदे, रोड का मसला रहंदे, ख़बरस्तान का मसला रहंदे, मस्जिद का मसला रहंदे। मैं नूरुल हुसैन, जनरल सेक्रेटरी ईदगाह कमेटी की तरफ से हम सारे महबूब नगर के मुसलमान आज एक मुश्त जमा होकर जो हमारे एमएलए साहब श्रीनिवास गौड़ साहब मिनिस्टर तेलंगाना और टीआरएस के रुकन, उनके ऊपर जो मर्डर करने की साजिश की जा रही है वो बेकार बातें हैं, क्योंकि श्रीनिवास गौड़ साहब इतना काबिल इंसान है, उनको बचपन से ही काम करने की आदत है। म्यूनसिपाल्टी में भी काम करते थे तो शानदार अंदाज से काम करते थे, और कई महबूब नगर में हम बोलने की ज़रूरत नहीं है, तारीख़ी काम सामने मौजूद है। हमारे बचपन से ज़ईफ़ी तक देखे हैं कि अगर ज़रूरत की जगह थी तो महबूब नगर में कहीं नहीं थी, यनगुंडे से मिल्क सेंटर तक कोई टॉयलेट न था, लेकिन हमारे मिनिस्टर साहब श्रीनिवास गौड़ साहब आकर डिस्ट्रिक्ट होटल ओनर्स एसोसिएशन कन्वीनर, को कन्वीनर महबूब नगर, और मैं टीआरएस महबूब नगर, महबूब नगर के आवाम में जो गुस्से की लहर और इजहार है, जो गम इन एक हफ्ते से यहाँ पर नज़र आ रहा है, सारे लोगों में बेचैनी, बेकरारी। एक इतनी अच्छी शख्सियत जनाब श्रीनिवास गौड़ साहब, उनके साथ इस तरह। मैं सुभानी पटेल, मुस्लिम्स ग्रेवयार्ड एक्सटेंशन एंड प्रोटेक्शन कमेटी का सेक्रेटरी। मैं श्रीनिवास गौड़ साहब के ऊपर जो कातिलाना हमले की साजिश की उसकी मजम्मत के लिए मैं तमाम खबरस्तान कमेटी, मसाजिद कमेटी और मैं अहलियान महबूब नगर की की तरफ से मजम्मत करता हूँ। मिनिस्टर साहब जो हमारे को खबरस्तान के लिए जो ज़मीनें दी हैं वो काफ़ी कास्टली ज़मीन दिए थे, उनको जो जिंदे नहीं मुर्दे भी उनके लिए दुआ करें, उनकी जान बचाने के लिए। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है, अल्लाह उनकी और सेहत दे और उनको और तरक्की दे। इसलिए खबरस्तान कमेटी की तरफ जानिब से मैं पूरे ये इस मसले के ऊपर मजम्मत कर रहा हूँ। कोशिश करेगा तो उसका जो है मुंह जवाब हम तमाम लोग मिलकर देंगे। मैं तमाम अहबाब का इस मौके पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पर शिरकत की और इस मजम्मती इजलास के अंदर जो है अपने ख्यालात का इज़हार किया, शुक्रिया। और मैं ख़ास तौर पर प्रेस वालों का भी, मीडिया का भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी दावत पर यहाँ पर लब्बैक कहा और हमारी बातों को सुना। शुक्रिया।